A very good morning, everybody. Today we will be dealing with the Norma Basalis. When we view the skull from the inferior aspect, this is known as Norma Basalis. This is the most irregular part of the skull, and this forms the basis on which the skull rests. So that is why it is known as Norma Basalis. Now, what are the margins of this Norma Basalis? When we look at it anteriorly, it is bounded by the incisor teeth here. Posteriorly, it is formed by the superior nuchal line. Here we have the superior nuchal line. Laterally, it is bounded by the rest of the alveolar arch, the zygomatic arch here, the posterior root of zygoma, the mastoid process, and an imaginary line that joins the mastoid process with the superior nuchal line here. Okay. Now, for describing the Norma Basalis, we divide the Norma Basalis into three parts. The anterior part, this one. The anterior part is also known as the hard palate. Then the part posterior to the hard palate is divided into two parts by an imaginary line that passes through the anterior part of this big opening that is known as the foramen magnum. So from here we draw an imaginary line. Therefore we can see that it is like steps, तीन different. दूसरी चीज़ important कि ये हम लोगों ने skull को उल्टा कर किया है ना. Skull basically ऐसे है, right? ऐसे है. So ये लोअर लेवल पे होगा, फिर ये हायर लेवल पे है इसके मुकाबले में. सो कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है. सो वी सी दैट इट इज़ एट थ्री स्टेप्स. सो वी हैव द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसालिस, वी हैव द मिडल पार्ट from the posterior part of the hard palate to this imaginary line, and then we have the posterior part of the Norma Basalis. Now, first of all, let's talk about the interior part of the Norma Basalis, which is also known as the hard palate. Now, looking at it from here, now what do you see here? Okay, so the anterior part of the Norma Basalis, when we see this portion, it occupies the gap that fills this horseshoe-shaped cavity that is formed by the alveolar arches of the maxilla. Okay? This constitutes the hard palate. When we look at the hard palate, we see that the hard palate is formed from the anterior part, the anterior 3/4 part here, is formed from this bone. This bone is known as, this is the part of the maxilla that is known as the palatine process of the maxilla. Okay, this one is known as the palatine process of the maxilla. You can see there is a cruciate anastomosis. There is a cruciate suture here है, क्रॉस जैसा सूचर है, ठीक है. क्रॉस जैसा सूचर दिखा रहा है कि यहाँ पे चार बोन्स मिल रही हैं, ठीक है. एंटीरियर 3/4 जो हार्ड पैलेट का है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ मैक्सिला दैट इज़ नोन एज द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला. जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये और ये दो पार्ट्स जो हैं, दिस इज़ फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल पार्ट of the palatine bone. So there is a palatine bone that is present deeper inside here. उसके horizontal part से बनती है, ठीक है. So this cruciate suture पूछते हैं आपको. जब हम इस cruciate suture को देखेंगे, so obviously this cruciate suture is formed by two sutures. एक ये suture जो इन दो parts के बीच में है, और एक ये suture जो इन दो parts के बीच में, और ये suture जो इसके और इसके बीच में. ये suture क्योंकि maxilla के palatine मैक्सिला के हमारे पैलेटाइन प्रोसेसेस के बीच में, सो इसको हम इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर मैक्सिलरी सूचर है. और ये जो है, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन के बीच में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर पैलेटाइन सूचर. और ये वाला क्या होगा, पैलेटो मैक्सिलरी सूचर. सो दिस फॉर्म्स योर हार्ड पैलेट. सो इंटर मैक्सिलरी सूचर, interpalatine suture and palato-maxillary suture. ठीक है, this is how the hard palate is formed. Okay, now obviously this hard palate जो है ये roof of the mouth बनाता है, ठीक है. ये आप लोगों की dome shaped cavity जो roof of the mouth है वो बनाता है. Now अब इसमें हमें क्या फीचर्स दिखते हैं. सबसे पहले जब हम लोग इंटीरियरली देखेंगे ऑपोजिट द मीडियन प्लेन, यहाँ पे वी हैव अ डिप्रेस्ड एरिया जो आप अपनी टंग से भी फील कर सकते हो. दिस डिप्रेस्ड एरिया इज नोन एज द इंसाइसर फॉसा. सो लुक एट इट लाइक दिस. ओके,
सो इंटीरियरली मीडियन प्लेन में इंसाइसिव टीथ के पीछे वी हैव अ डिप्रेस्ड एरिया, दिस इज नोन एज द इंसाइसिव फोसा. इंसाइसिव फोसा में देयर इज ओपनिंग ऑफ अ कैनाल, दिस वन, ठीक है, दिस वन जिसमें मैंने पिन रखी, दिस इज नोन as the incisive canal. This incisive canal gives passage to the greater palatine vessels and nasopalatine nerve. Greater palatine vessels and nasopalatine nerve. This incisive canal जब हम देखते हैं, it opens into ये रूफ, ये फ्लोर ऑफ द नोज में खुलती है, यहाँ पे खुलती है, ठीक है, नेजल कैविटी में खुलती है. सो दिस here is the incisive canal, giving passage to two important structures, greater palatine vessels and the nasopalatine nerve. Is it clear? Now, उसके बाद क्या होता है, जब आप लोग देखोगे hair on the posterolateral margin, हम लोग सिर्फ इतने की बात अभी करेंगे. So posterolateral margin पे, यहाँ पे, ठीक है. सो पोस्टीरियर लेटरल मार्जिन पे पैलेट के देर इज दिस ओपनिंग जिसमें मैंने ये भरा. दिस ओपनिंग इज नोन एज द ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन. द ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, दिस ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन गिव्स पैसेज टू द ग्रेटर पैलेटाइन नर्व्स एंड वेसल्स. ओके, ग्रेटर पैलेटाइन नर्व्स एंड वेसल्स पास थ्रू इट, ठीक है. जब हम देखेंगे इस ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से ये एक ग्रूव जाता है इंटीरियरली, जो कि इंसाइसिव फोसा की तरफ जाता है. ये दिख रहा है, ये ग्रूव, ये जो ग्रूव होता है जो कि ग्रेटर पैलेटाइन वेसल, मतलब ये ग्रूव जो होता है, ये अगर हम देखेंगे डीपर है पीछे इंटीरियरली, ये लेस डीपर है, ठीक है. ये इंसाइसिव फोसा की तरफ जाता है. इस ग्रूव से भी हमारी ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स पास होती हैं और फिर यहाँ जाती है. बेसिकली अंदर से आती हैं, यहाँ से निकलती हैं, इस ग्रूव से पास होती है ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स, नर्व्स, और फिर यहाँ से जाके इंसाइसिव फोसा से हमारी ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स पास होती हैं. इज इट क्लियर? ठीक है. इसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे, लुकिंग एट दिस प्रोसेस है, look at this part here, this part, this triangular part here, जो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के जस्ट पीछे है, दिस पार्ट है, दिख रहा है, दिस इज नोन एज द pyramidal process of the palatine bone. The pyramidal process of the palatine bone projects backwards और ये lateral और posterior margin of the hard palate बनाता है. इसमें छोटे छोटे फोरामेन होते हैं जो कि ये दिख रहे हैं ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के पीछे, ये, इसको हम लोग लेसर पैलेटाइन फोरामेन कहते हैं. लेसर पैलेटाइन फोरामेन से लेसर पैलेटाइन वेसल्स पास होती है और मिडिल एंड पोस्टीरियर पैलेटाइन नर्व्स पास होती हैं. ठीक है. उसके अलावा हमें क्या दिखता है यहाँ पे, ये हो गया लेसर पैलेटाइन वेसल, ये हो गया पैरामिडल प्रोसेस, ये हो गया ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन हमारा. ठीक है. अगर हम ये सरफेस को फील करेंगे हाथ से, ये सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है क्योंकि यहाँ पैलेटाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे लुकिंग एट दिस, यहाँ पे जस्ट एंटीरियर टू द पोस्टीरियर मार्जिन, यहाँ पे ये वी हैव एन एलिवेशन हेयर of the hard palate. This elevation is this curved ridge, we can say this is a ridge. This ridge is known as the palatine crest. ये palatine crest जो होता है, it gives insertion to a muscle that is known as the tensor palati muscle. So tensor palati muscle is attached to this point. ठीक है. उसके बाद जो posterior margin है hard palate का, ये एकदम free है और ये curved है. ठीक है. ऑपोजिट द पोस्टीरियर पार्ट, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ आती है. दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज द पोस्टीरियर नेजल स्पाइन. द पोस्टीरियर नेजल स्पाइन गिव्स अटैचमेंट टू द मस्कुलस यूवुला. यूवुला के मसल इस पर अटैच होता है. ठीक है. इसके अलावा जो पूरा पोस्टीरियर बॉर्डर है हार्ड पैलेट का, यहाँ पे फ्री मार्जिन, दैट गिव्स अटैचमेंट टू द पैलेटाइन एपिनेरोसिस. ठीक है. सो दिस फिनिशेज द इंटीरियर पार्ट, दैट इज़ द हार्ड पैलेट. सो इसमें आप लोगों को नॉर्मली बोल सकते हैं कि इंटीरियर पार्ट डिस्क्राइब करिए, मिडिल या पोस्टीरियर जो भी है. ठीक है. हम इसको पार्ट्स में लेंगे क्योंकि देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और बच्चे इससे थोड़ा डरते हैं. तो अभी के लिए टू रिवाइज दिस क्लास वी सेड दैट
This portion is the Norma Basalis. When we look at the skull from the lower side, the boundaries are anteriorly the incisor teeth, the central incisors. Then laterally we have the rest of the alveolar arch, the zygomatic arch. We have the mastoid process. We have an imaginary line that is joining the mastoid process with the superior nuchal line. Posteriorly it is bounded by the superior nuchal line. Then I said that this part is divided into three parts. The anterior part, then the posterior part is divided into two parts by an imaginary line that is passing through the interior boundary of the foramen magnum. इसको डिवाइड करती है इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर पार्ट से. हम लोगों ने इंटीरियर पार्ट की बात की. क्या फीचर्स हमने इंटीरियर पार्ट इतना है हमारा, तो इंटीरियर पार्ट की हमने क्या फीचर्स देखे. सो वी सेड कि इंटीरियर पार्ट इस हॉर्सशू शेप कैविटी में प्रेजेंट है. ये हमारा हार्ड पैलेट बनाता है. ठीक है, जब हम इसको देखेंगे इसमें हमें दिख रहा है कि 4 बोन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं. 4 बोन्स क्या है, इंटीरियरली ये और ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे मैग्जिला के पार्ट है. राइट, सो ये क्योंकि हमारे मैग्जिला के पार्ट हैं, इसको पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जिला कहते हैं. आगे हम मैग्जिला पढ़ेंगे तो हम देखेंगे मैग्जिला के भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसका पैलेटाइन प्रोसेस है ये. उसके बाद पैलेटाइन प्रोसेसेस के बीच में जो ये क्रूशिएट सूचर है, क्रूशिएट मीन्स क्रॉस शेप, ये इंटर मैग्जिलरी सूचर है. पीछे पैलेटाइन बोन के पार्ट्स हैं जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन कहते हैं. इसके बीच में इंटर पैलेटाइन सूचर है. फिर ये वाला जो लिम्ब है दैट इज़ नोन एज अ पैलेटो मैग्जिलरी सूचर. ठीक है, तो ये आपके सूचर्स हो गए. इसके अलावा फीचर्स में क्या है, इंटीरियरली यहाँ पे एक डिप्रेशन है जिसको इंसाइसिव फॉसा कहते हैं. इंसाइसिव फॉसा में जब हम देखते हैं हमारे पास इंसाइसिव कनाल है. ये इंसाइसिव कनाल नोज़ में खुलती है. यहाँ से क्या पास होता है, यहाँ से ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स और नेज़ोपैलेटाइन नर्व पास होती है. ठीक है, इसके बाद हमने कहा पोस्टेरोलेटरल पार्ट में हमारे पास एक ओपनिंग है जिसको हम लोग ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन कहते हैं. ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से ग्रेटर पैलेटाइन नर्व्स और वेसल्स पास होती है. ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से लेके इंसाइसिव फोसा तक एक ग्रूव जाता है जहाँ से ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स यहाँ से निकलती हुई यहाँ से नाक में चली जाती हैं. ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बोला, हमने कहा ये प्रोसेस जो हमें दिख रहा है, अगर आप लोग गौर से देखोगे इस साइड से दिख रहा है, ये जिसके मार्जिन्स दिख रहे हैं ये. ठीक है, ये पोर्शन जो पोस्टेरो लेटरल मार्जिन हमारा बनाता है, बिल्कुल पोस्टेरो लेटरल, इसको हम लोग बोलते हैं पायरामिडल प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन. तो पायरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन में ओपनिंग है, जो छोटी सी ओपनिंग है जिसको हम लोग लेसर पैलेटाइन फोरामेन कहते हैं. ठीक है, लेसर पैलेटाइन फोरामेन से हमारी लेसर पैलेटाइन वेसल्स, मिडिल एंड पोस्टेरोलेटरल पोस्टीरियर पैलेटाइन वेसल्स पास होती हैं. इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज़ बोली, हमने बोला कि भाई यहाँ पे एक रिज है, ये ये हमारे पास एक एलिवेशन है इसको या क्रिज है जिसको हम पैलेटाइन क्रेस्ट कहते हैं, जिस पे टेंसर पैलेटाइन मसल लगता है. इसके बाद हमने कहा पोस्टीरियर मार्जिन फ्री है, पीछे प्रोजेक्ट करता है, ये पोस्टीरियर नेजल स्पाइन बनती है. पोस्टीरियर नेजल स्पाइन पे मस्कुलस यूविले जो कि यूविला का मसल होता है वो अटैच होता है और इस पूरे मार्जिन पे हमारा पैलेटाइन एपिनेरोसिस अटैच होता है. सो दिस फॉर्म्स योर हार्ड पैलेट. नॉर्मल लिविंग स्टेट में ये हमारा ओरल कैविटी का रूफ बनाएगा. ये इरेगुलर होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैलेटाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से इसमें इरेगुलरिटी आती है. ठीक है, सो दिस फिनिशेज द इंटीरियर पार्ट ऑफ योर नॉर्मा बेसालिस, दैट इज़ द हार्ड पैलेट.